Hello, everyone, and welcome back to our YouTube channel Vision Civil Service. My name is Lakshita, and I'm a faculty of Political Science and Current Affairs with Vision Civil Service. I welcome you all to our YouTube channel and to our session of polity, in which we'll be discussing one topic at a time of polity. In our last session, we discussed about the whole topic what are fundamental rights. Now, we'll be taking one of one what are the basic fundamental rights, starting with right to equality. Before starting a session, I would like to tell you about Vision Civil Service that our institute provides coaching for UPSC, PCS, and other competitive exams. These videos are also applicable for all the exams. So go and watch and subscribe our channel so that you can get all the details of all the videos that are coming up on our channel. And secondly, we have bilingual courses, i.e., in Hindi and English, and also we have offline and online batches available. So you can go and enroll in our batches now. And we have batches started for the next year, i.e., 2025. So go and hurry up and get discounts on your enrollment. Okay, so let's start with our discussion today. Okay, so we'll be discussing right to equality, that is from Article 14 to 18. Okay. Before starting, I would request you all to please like, share and subscribe our video. Okay. So that आप हमारी मेहनत भी वेस्ट ना जाए एंड आप जो वीडियो देखने आए हैं they also get more benefit from it. Okay. First is right equality before law and equal protection of law that is given in Article 14 of the Indian Constitution. What does this article tells us about? This article says that कि किसी भी पर्सन को इक्वालिटी मिलेगी बिफोर द लॉ। अगर कोई इंसान लॉ के सामने जाएगा मतलब कोर्ट जाएगा, उसको इक्वालिटी प्रोवाइड होगी, इक्वल प्रोटेक्शन उसे मिलेगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, कोई भी इंसान ऊंचा या नीचा नहीं है ऑन द आइज ऑफ लॉ। लॉ के लिए एवरी पर्सन इज इक्वल, वेदर ही इज अ रिच पर्सन, वेदर ही इज अ बिजनेसमैन और अ पुअर पर्सन working on daily wages. Everyone is equal before law and the law protects equality for all. ठीक है? Law gives us the protection. Okay? And when we understand the concept equality before law, first of all, the word equality before law आया है British origin से, ठीक है? And the equal protection of law has come from the American Constitution. अगर हम डीप में समझे इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब किसी भी पर्सन को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, कोई भी पर्सन को फेवरिज्म या स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेंगे इन द इन फ्रंट ऑफ लॉ। ठीक है? And second, every person, whether he is an ordinary person or whether he is a subjected person, the law of the land will protect every person. Okay, and no person, whether rich or poor, whether with high income or low income, whether an official or a non-official, everyone is equal above and equal above the law. ठीक है, कोई भी ऊंचा नहीं है लॉ से, सब इक्वल है लॉ के सामने। अगर हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखें जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका मतलब है कि हर को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, किसी को भी अलग से प्रिविलेज नहीं मिलेंगे व्हेन इट कम्स टू लॉ। किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलता है जब हम लॉ के सामने होते हैं। एवरीवन इज ट्रीटेड ऑन द सेम स्केल। अगर कोई लॉ के लिए जाएगा, अगर किसी इंसान किसी के फैमिली मेंबर के साथ कुछ हो जाता है, किसी का मर्डर होता है, एनीथिंग, तो अगर वो पर्सन जाएगा लॉ के सामने एंड द अदर पर्सन जिसके अगेंस्ट केस जा रहा है, ही इज वेरी पावरफुल पर्सन, स्टिल द लॉ विल बी सेम फॉर ऑल। लॉ किसी में भी डिफरेंशिएट नहीं करेगा। ओके, and everyone will be treated alike without any discrimination, whether it be caste, whether it be your status, whether it be your sex, anything. So everyone is equal before the law. And when we talk about rule of law, तो रूल ऑफ लॉ मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो एंड लॉ इज सुप्रीम। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा दिया था एवी डाइसी ने, ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि रूल होना चाहिए लॉ का। लॉ इज द सुप्रीम पावर, सबसे ऊपर है हमारा
लॉ सिटीजन से ऊपर, ऑफिशियल से ऊपर, नॉन ऑफिशियल से ऊपर, किसी से भी सबसे ऊपर होगा हमारा लॉ। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस के बारे में। मतलब कुछ लोग हैं या कुछ चीजें हैं जो लॉ में भी कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, या किसी को स्पेशल कुछ अलग प्रिविलेजेस हैं, किसी के लिए लॉ थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। ऐसी क्या कंडीशन है? सबसे पहला, जो हमारे प्रेसिडेंट है एंड जो गवर्नर होते हैं हमारे स्टेट के, उनको कुछ इम्यूनिटी मिलती है अंडर द लॉ। ठीक है, आर्टिकल 361 के अंदर, कि अगर कोई केस होता है रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, दे आर नॉट आंसरेबल। मतलब उन्हें किसी कोर्ट के सामने आगे आकर सामना नहीं करना है। दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एनी परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज और देयर ऑफिस। अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती है या उनका कोई एक्ट ऐसा होता है, स्टिल दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू बी प्रेजेंट बिफोर द लॉ और बिफोर द कोर्ट। उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है। उनको ना अरेस्ट किया जा सकता है, ना इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है व्हेन इट टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। ओके, उसके बाद हम ये बताएंगे prohibition of discrimination on the basis of religion, caste, sex or place of birth, that is article 15 of the constitution। इस स्टेटमेंट से ही हमें क्लियर हो जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाएगा रिलीजन, कास्ट, मेल फीमेल जो कि सेक्स हो सकता है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। मतलब क्योंकि हमारा जो कंट्री है, इंडियन सोसाइटी, ठीक है, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन ऑन दीज बेसिस। सो इसी को रोकने के लिए दिस आर्टिकल वाज ब्रॉट अप, एंड इट वाज द कॉन्शियंस ऑफ अ फाउंडिंग फादर डॉक्टर B.R. Ambedkar। He tried to bring equality in the society that was inherently unequal। एक ऐसी सोसाइटी थी हमारी जिसमें शुरुआत से हमने ऊंच नीच, छुआछात, रिलीजन के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे सब चीजें देखी थी, प्रिवेलेंट थी। उसी को रोकने के लिए, उसी में स्टेबलाइजेशन लाने के लिए आर्टिकल 15 को लाया गया था बाय आवर फाउंडिंग फादर। इसके अंदर राइट्स गारंटी गई गई है हमारे इंडियन सिटीजन्स को, कि कोई भी अगर आपके अगेंस्ट ऐसी डिस्क्रिमिनेशन करता है, देन यू कैन गो टू द कोर्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू मूव टू द कोर्ट सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर राइट। ओके, उसमें आर्टिकल 15(1) एंड 15(2) भी आता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड 15 क्लॉज 2 विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन एंड द चाइल्ड राइट्स, जो कि ये बताता है कि स्टेट को ऐसे कुछ एक्ट लाने हैं या ऐसे कुछ चीजें करनी है जिससे कि वो वुमेन की जो राइट्स हैं या वुमेन और जो चाइल्ड राइट्स हैं उनको इक्वालिटी प्रोवाइड कर सके। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि वर्क प्लेसेस पे या फिर बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ पे वुमेन के साथ भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द जेंडर। सो to protect that, 15 clause 1 and 15 clause 2 has been brought up in the notice। And next is 15 clause 3, that is special provision for children and women। कि उनके लिए स्टेट क्या करेगी, स्टेट ऐसी क्या चीजें लाएगी जिससे कि वो डिस्क्रिमिनेशन को रोक सके, इक्वालिटी को ला सके। ओके, एंड इसके अंदर हम ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन देंगे, दैट इज अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 3। एंड व्हाट डज B.R. Ambedkar has to say about this, that our constitution is not just a political document, ठीक है, इट इज अ सोशल डॉक्यूमेंट, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। तो इसीलिए उसका काम क्या हो जाता है, टू प्रोटेक्ट, टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द पीपल। सो डिस्क्रिमिनेशन अगर रोका जाएगा तो वो सेफगार्ड करेगा हमारे सिटीजन्स की राइट को। ओके, next we have equality of opportunity in matters of public employment, that is article 16 of the Indian constitution। सो दिस आर्टिकल बेसिकली टॉक्स अबाउट कि अगर कोई भी इंसान पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, जॉब के लिए जा रहा है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए।
ठीक है, एवरीवन इज इक्वल व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट पर्पस। ठीक है, तो मेल फीमेल रेस के बेसिस पे, क्लास, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या आपके रेजिडेंस के बेसिस पे आपके साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जानी चाहिए। दैट इज व्हाट इज आर्टिकल 16। इट टॉक्स अबाउट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। एक इक्विटी की बात करी जाती है कि सबको सेम आधार के साथ एक ही फील्ड मिले जिसमें हर के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, अगर मतलब रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन इसीलिए दी जा रही है जिससे कि जो कास्ट हैं, जो क्लासेस हैं, जो कि बहुत टाइम से SC, SC, OBC जिनके साथ बहुत टाइम से आफ्टर सो मेनी डिकेड्स बिफोर ऑल्सो दे हैड इश्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उस चीज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड लेने के लिए दे हैव बीन प्रोवाइडेड रिजर्वेशन, जिससे कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके वेयर दे कैन बी इक्वली एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर रिजर्वेशन मिलती है किसी को, सो दे हैव बीन गिवन सम क्रेडिट, बोल सकते हैं कि उनके पास एक बेनिफिट होता है। ओके, अब उस बेनिफिट से क्या होगा कि दे हैव द सेम प्लेटफॉर्म, अब वो सेम प्लेटफॉर्म पे आके लड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनको पीछे धकेला जा रहा था, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी लाने के लिए इक्वल लेवल, इक्वल प्लेइंग फील्ड, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट इज व्हाट इज आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज abolition of untouchability and prohibition of its practice, आर्टिकल 17, जो कि बात करता है कि हम अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर देंगे। अगर ऐसी प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ हो रही है, हम उसको क्या कर देंगे, जड़ से हटा देंगे, प्रोहिबिट कर देंगे ऐसी प्रैक्टिसेस को। ठीक है, अनटचेबिलिटी जो कि हमने देखा है हमारे एंशियंट पीरियड से चलती भी आ रही है, वेयर people were not allowed to enter temples, were not allowed to take this water from the same well as the general people or the brahmins or the kshatriyas were taking। तो हमारे यहाँ ये वर्णा सिस्टम होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। तो बेसिकली जो शूद्रा कम्युनिटी होती थी उनको अनटचेबल कहा जाता था। दिस गॉट कैरिड अवे फ्रॉम एजेस टू एजेस एंड स्टिल in some places we find untouchability being practiced। Okay, so untouchability is now a punishable offense। अगर कोई उसको प्रैक्टिस करता है, अगर कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है जस्ट बिकॉज ऑफ देम बीइंग ऑफ द लोअर बैकग्राउंड, तो वो पनिशेबल है। दे कैन गो टू कोर्ट एंड दिस इज टू बी टेकन एक्शन अपॉन। ठीक है, इसके लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। ठीक है, इट कैन बी इंडिविजुअल, इट कैन बी बिटवीन द इंडिविजुअल और द स्टेट। स्टेट भी आपके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ यू बीइंग ऑन फर्स्ट पर्टिकुलर कास्ट और अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं वेयर अनटचेबिलिटी और वेयर प्रिवेंशन हैज बीन टेकन प्लेस, लाइक मंदिर में औरतों को ना घुसने देना, या टेम्पल एंट्री पे जो रोक टोक हो जाती है, या फिर पानी को लेके इश्यूज होते हैं, ऐसी चीजें। ओके, अगर ऐसी चीज प्रैक्टिस होती है देन वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, एंड एक ऐसा एक्ट भी आया था, क्योंकि ये पनिशेबल ऑफेंस है, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट आया था 1955 में। क्योंकि ऐसे जेस्चर को, ऐसे एक्ट को रोकने के लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना, एक मजबूत हमें ढांचा चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है, बट विदाउट बीइंग इट इम्प्लीमेंटेड हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ हम इसे रोक रहे हैं। ओके, महात्मा गांधी ऑल्सो कॉल्ड द अनटचेबल हरिजन, उनको एक इक्वालिटी देने के लिए कि नहीं, वी आर नॉट कंसिडरिंग देम एज अनटचेबल्स, उनको कहने जाने का हरिजन्स। ठीक है, तो खाली उनको नाम देने से हम ये नहीं बोल सकते कि हम उस चीज को रोक पा रहे हैं। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक लॉ के अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
Next, we go on to article number 18, that is abolition of titles other than military and educational titles. इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसे टाइटल्स हमारे ब्रिटिश पीरियड में दिए जाते थे जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन हो जाता है, जैसे राजा का टाइटल दे देते थे, नवाब के टाइटल होते थे एंड मैनी मोर। इससे क्या होता था, कुछ सेक्शंस को एक मेरिट मिल जाता था, वो अपने आप को सुपीरियर ठहराने लगते थे। इसीलिए आर्टिकल 18 वाज ब्रॉट अप, जिसमें ऐसे सारे टाइटल्स को हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, अदर देन आर मिलिट्री एंड एजुकेशनल टाइटल। जैसे कि डॉक्टर का टाइटल हो गया, दैट कम्स अंडर एजुकेशनल टाइटल। प्रोफेसर, मिलिट्री में हम लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, ब्रिगेडियर्स होते हैं। ऐसे टाइटल जो कि अर्न किए जा रहे हैं, बेसिकली हम बोल सकते हैं। ठीक है, मिलिट्री और एजुकेशनल टाइटल्स क्या हो गए, हम अर्न कर रहे हैं, मेहनत करके उसको अर्न कर रहे हैं। तो ऐसे टाइटल्स हम सस्टेन कर सकते हैं, बाकी सारे अदर टाइटल्स को रिमूव करा गया था। ओके, एंड ऐसे अगर टाइटल्स को कोई प्रोवाइड करता है, तो मतलब इंडियंस को अगर बाहर से कोई ऐसा टाइटल दे रहा है, देन वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट। ठीक है, एंड अ पर्सन हु इज इंडियन कैन नॉट होल्ड सच एन टाइटल। अगर आप बाहर जाके रह रहे हो, आपने इंडियन सिटीजन छोड़ दिया है, ठीक है, तब आप टाइटल्स ले सकते हो, देन इट इज नॉट आर और नॉट अंडर आर जुडिक्शन। बेसिकली अगर आपने हमारी सिटीजनशिप, इंडियन की सिटीजनशिप छोड़ दिया है, देन यू कैन टेक द टाइटल, अदरवाइज आप ऐसे टाइटल्स को नहीं ले सकते बीइंग अपॉन एन इंडियन। एंड इसमें एक और पॉइंट आता है कि टाइटल्स तो हमने रिमूव करे हैं, बट हमने नेशनल अवार्ड जैसे टाइटल्स को रिमूव नहीं किया है, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन मेरिट। ठीक है, इसलिए उनको रिमूव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो नेशनल अवार्ड्स जो हैं, दे आर नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो इसीलिए उनको सस्टेन कर सकते हैं। ऐसा एक केस भी आया था, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1995 में ऐसा केस हुआ था, जिसमें बोला गया था कि दैट नेशनल अवार्ड्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट national awards can be taken into consideration because they are earned because of some contribution to either to the society or to the art form or something else। क्योंकि आपने देखा होगा, हमारे जो क्रिकेटर्स होते हैं, या हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, या पीपल बिलोंगिंग टू द बॉलीवुड और द सिनेमैटिक बैकग्राउंड, ठीक है, उनको भी ऐसे अवार्ड्स दिए जाते हैं। सो ऐसे टाइटल्स क्यों दिए जा रहे हैं, ऐसे अवार्ड्स क्यों दिए जा रहे हैं? बिकॉज दे हैव अर्नड इट थ्रू देयर वर्क। तो दीज टाइटल्स आर एक्सेप्टेबल, अदर दैन जो टाइटल राजा, नवाब या ऐसी चीजों को जस्टिफाई करते हैं, उनको हटाया जा चुका है। So we have discussed today right to equality. Okay, in next video, that is the part 3, we'll be discussing right to freedom. उसमें हम सारे right to freedom को discuss करेंगे in detail. I hope you are understanding the video. अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है वीडियो समझने में, I am bringing out this video जिससे कि आप easily हर टॉपिक को समझ सके। ठीक है, मैं इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज कर रही हूँ। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, एंड प्लीज इसके बाद की भी सारी वीडियोस कंटिन्यूएशन में देखिएगा, जिससे कि आपके टॉपिक फटाफट रिवाइज या ब्रशन अप हो जाएंगे और आपको चीजें समझने में इजीली हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो आई होप वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन हैव अ गुड डे। go for your preparations, do it well. Okay, and we are here for you, so if you have any queries or anything, you can comment down below and contact us. Okay, thank you for watching this video. Bye bye. Take care.